Hello, friends. Vincent Lombardi has correctly said that leaders are not born, they are made. Yes, it is an absolutely correct statement. So, if you think that leaders are by birth, no, it is not like that. It is not a truth. Leaders can be made if they possess, if they develop certain qualities in them. So, it is not that we cannot become a leader. If you want to become a leader, you can uh, take some qualities, you can learn some qualities, you can develop them in yourself, and you will see that you are also a leader eventually. So what are these qualities? These qualities you can have by wearing a cap. Wearing a cap, this cap is basically vice cap. So vice cap here is an acronym of the qualities which good leaders possess. So this acronym vice cap, it stands for V for vision. Vision, the great leaders, they have a very articulated vision. That means they know what they have to exactly do in the future. उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है फ्यूचर में. तो for this what they do, they define their goal. उनका जो गोल रहता है वो उसको properly in the beginning only they define. Maybe it is personal or organizational goal. जो भी उनका गोल है वो उसको पहले ही डिफाइन कर लेते हैं, एंड दे ट्रांसलेट इट इनटू द स्ट्रैटेजीज टू अचीव दैट पर्टिकुलर गोल. जो उनका एम है उसको अचीव करने के लिए वो फिर स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंगली डेवलप करते हैं, सो दैट दे कैन अकम्प्लिश देयर गोल विद इन द गिवन टाइम फ्रेम. जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर उनका गोल अचीव हो जाए, इस अकॉर्डिंगली वो स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, एंड दे इवेंचुअली गेट द सक्सेस, और उन्हें फाइनली सक्सेस भी मिल जाता है. Then the next thing they possess is I. I stands for integrity. Integrity matlab, you will see that good leaders are having the quality of integrity. They are very honest. They are responsible and accountable for their actions. Whether it is correct or wrong, they do not blame others for their actions, for their decisions. They take the responsibility of the same. So it is not that when good things are happening, when good outcomes are coming, they will take the credit, and if it goes wrong, they will blame others. No, they never do like that. So if one wants to become a good leader, then he should have the quality of integrity. He should be responsible and accountable for his own action. Then next alphabet in vice cap comes C. C means communication. Communication is the great weapon which can be used to become a good leader. If you are having, if you want to communicate, it should be communicate in a manner that what you want to speak, what you want to say, it should be exactly understood by the other person to whom you are speaking to. जो आप बोलना चाह रहे हैं ठीक वही की वही सामने वाला बंदा उसको समझे, then only your communication is सक्सेसफुल, अदरवाइज इट इज़ फेल्ड. जो आप कहना चाह रहे हैं पहले इंस्ट्रक्शन में उनको क्लियर हो जाना चाहिए. आप अपने टीम मेंबर से मान लीजिए कोई ईमेल लिखने को बोल रहे हैं, तो आपको पहली बार में उनको ऐसा इंस्ट्रक्शन देना है कि जैसा आप चाह रहे थे उन्होंने सेम ईमेल लिख दिया हो. अदरवाइज़ व्हाट विल हैपन कि अगर आपने ठीक से उनको इंस्ट्रक्ट नहीं किया तो वो ईमेल जो है वो कुछ गलत समझेंगे, गलत लिखेंगे. देन अगेन यू हैव टू एक्सप्लेन, फिर आपको एक्सप्लेनेशन देना है, फिर वो काम रिपीट करेंगे, which results in loss of time, loss of manpower, loss of energy, development of frustration, and wastage of organizational resources. So to communicate effectively, you need to be clear and concise. आपको clearly और concisely अपनी बात रखनी है. That means गागर में सागर. आपको ज़्यादा की जगह छोटे में ही अपनी बात को एक्सप्लेन करके सामने वाले को बता देना है, ताकि वो और क्लियरली बताना है ताकि उन्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं हो समझने में. देन कम्स ई. ई इज़ एम्पैथी. एम्पैथी मतलब पुटिंग योर सेल्फ इन अदर शूज़. हम अगर एम्पैथेटिक है तो हम हमेशा दूसरों की जगह रखकर अपने आप को सोचते हैं कि हैड आई बीन इन दिस प्लेस व्हाट आई वुड हैव डन. अगर मैं इस जगह होता तो मैं क्या करता. हो सकता है सामने वाले ने कोई गलत एक्शन ले लिया हो, कोई गलत डिसीजन ले लिया हो, कोई गलती हो गई हो. So instead of blaming him, first we need to understand कि ऐसा क्यों हुआ. अगर आप उसको
अपने पर्सपेक्टिव से मत सोचिए कि इन्होंने गलत काम किया, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज सिचुएशन कि ये काम क्यों गलत हुआ, क्या रीज़न रहा जो ऐसी गलती हो गई। तो जब आप इस तरीके से सोचेंगे तो यू विल चेंज योर थॉट्स फॉर द अदर पर्सन। आपका जो बोलने का, आपका जो देखने का नज़रिया है वो सब बदल जाएगा। तब आप हो सकता है कि इंस्टीड ऑफ ब्लेमिंग आपको एक्चुअल प्रॉब्लम समझ में आए और यू विल ऑल्सो हेल्प द अदर पर्सन। इससे सामने वाला बंदा भी आपको एज ए गुड लीडर देखेगा कि इन्होंने मेरी गलती होने के बावजूद भी इन्होंने मुझे ब्लेम नहीं किया, रादर इन्होंने मुझे सपोर्ट किया ताकि मैं कैसे उस चीज़ को ओवरकम कर सकूं। सो दिस वाज अबाउट बीइंग एम्पैथेटिक। देन कम्स सी। सी स्टैंड्स फॉर कमिटमेंट। जो गुड लीडर्स होते हैं दे आर कमिटेड टू कंटिन्यूस लर्निंग एंड डेवलपमेंट। वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं, चाहे वो इट कुड बी अ फॉर्मल कोर्स, चाहे वो चाहे तो आप कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स करते रहते हैं, कुछ भी ऑनलाइन बहुत सारे आजकल चीज़ें अवेलेबल है, वहाँ से कुछ लर्निंग लेते हैं। दे आर वेरी मच अपडेटेड विद द करेंट मार्केट ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स। उनको आज अभी की मार्केट में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड्स है, क्या डेवलपमेंट है, उस सब के बारे में उन्हें पूरी जानकारी रहती है। तो यू नीड टू बी अपडेटेड एंड ओपन योर माइंड फॉर कंटिन्यूस लर्निंग एंड डेवलपमेंट. So this commitment here stands for commitment to learning and development. Then comes we have talked about vice and scap. So C has completed. Now come A. A is active listening. So the good leaders are also active listeners. एक्टिव लिसनर्स इन द सेंस, एक होता है हियरिंग, एक होता है लिसनिंग. अभी मैं जो आपको बोल रही हूँ हो सकता है यू माइट बी हियरिंग और यू माइट बी एक्टिवली लिसनिंग. हियरिंग इन द सेंस कि हम जब सामने वाले के शब्द हमारे कानों में जा रहे हैं बट हम उसको ज़्यादा इतना समझ नहीं रहे हैं, बस वो सिर्फ कुछ हमारे कानों में आ रहा है, डैट इज़ हियरिंग. बट व्हेन यू आर डूइंग एन एक्टिव लिसनिंग, जब आप एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं तो आप जो सामने वाला बोल रहा है उसको आप डैश भी करते हैं. वी कैन अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल. जैसे जब हम कोई गाना सुनते हैं, बस वो गाना हमारे जहन में चलता रहता है, हम सुन रहे हैं, बट जब वो गाना अगर आपको कहीं उसका परफॉर्मेंस देना है, अगर आप वो गाना आपको कहीं गा कर दिखाना है, तब आप उस गाने की लिरिक्स को एक्टिवली लिसन करते हैं कि क्या शब्द बोला है, आप उसको समझते हैं, आप उसको सुनते हैं, आप उसको लर्न करते हैं. तो दैट बिकम्स लिसनिंग. सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग. So if you want to become a good leader, you need to be an active listener. Active listener, आप इसको वर्बली भी आप अपने शो कर सकते हैं बाय सेइंग यस नो, जो भी आप सामने वालों के अकॉर्डिंगली उसके रिस्पॉन्ड करेंगे, और नॉन वर्बली भी बाय नॉडिंग योर हेड, एंड देयर आर मैनी अदर थिंग्स. वो मैंने अपने अलग वीडियो में कवर किया होगा कि कैसे हम एक्टिव लिसनर बन सकते हैं. तो आप एक्टिव लिसनिंग भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है. तो आपको एक एक्टिव लिसनर बनना है अगर आपको एक गुड लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी है तो. देन लास्ट कम इज़ पी. पी इज़ बीइंग पैशनेट. जो गुड लीडर्स होते हैं दे आर पैशनेट अबाउट देयर वर्क. व्हाट दे वर्क दे लव टू डू इट. जो भी उनका काम है दे आर इन लव विद इट. उनको वो अपना काम जो है वो कोई बर्डन नहीं लगता, उन्हें कोई बोझ नहीं लगता है. अब नाउ वी कैन हैव अ क्वेश्चन कि मुझे काम जो मैं कर रहा हूँ दैट इज़ नॉट बाय ऑफ माई इंटरेस्ट, दैट इज़ नॉट बाय माई चॉइस, एंड आई हैव टू डू इट जस्ट बिकॉज माई सिचुएशन, माई सर्कमस्टांसिस डोंट अलाउ मी टू वर्क बिसाइड्स दिस. है ना, हो सकता है आपके सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं, आपको कुछ ऐसा काम करना पड़ रहा है जो आपकी चॉइस का नहीं है बट फिर भी आपको करना पड़ रहा है. तो हाउ यू विल से हाउ कैन आई लव दैट. तो फिर मुझे कैसे मैं ऐसे इसमें पैशनेट हो पाऊँगा इस काम पे. तो जब आप देखेंगे आप जो भी काम कर रहे हैं आपको उसमें कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिल जाएगा विच विल गिव यू एन्जॉयमेंट. उसका आपके प्रोफाइल का कोई भी पार्ट ऐसा हो सकता है जिसको करने से आपको एन्जॉयमेंट फील होता है, आप उसमें अच्छा फील करते हो वो काम करके. तो यू जस्ट हैव दैट एम्फेसाइज ऑन दैट पॉइंट मोस्टली. उसको उस पॉइंट पे जो भी आपका वो वाला टास्क है, वो वाला जो पर्टिकुलर आपका जो एरिया है जिसमें आप एन्जॉयमेंट फील करते हैं, तो आप उस काम पे और अच्छे से फोकस कीजिए, उसको और अच्छा बेहतर बनाइए. तो आप देखेंगे कि ग्रेजुअली यू आर डेवलपिंग द इंटरेस्ट इन दैट वर्क. उस एरिया में आपका वर्क इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है एंड यू विल
फील द सेटिस्फैक्शन, फिर आपको भी वहाँ पर जो अभी तक आपको लग रहा था कि मेरे इंटरेस्ट के काम नहीं है, बट अगर उसमें से कुछ भी आपको छोटा भी सा भी कोई इसका प्रोफाइल आपका वर्क आपको इंटरेस्टिंग लगता है और आप उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, उसको एंजॉय करना शुरू करते हैं, तो at the last you will see that you are also satisfied by what you are doing. So if it is a work by your not your of your choice, still you can make it enjoyable and work that can give you satisfaction. So this was about Vice Cap. Vice is V is vision, I is integrity, C is communication, E is empathy, C is commitment, A is active listening, and the last one, P, is being passionate about your work. So if you wear this cap, you will also definitely become a good leader very soon. तो ये क्वालिटीज़ आपको जो बताई मैंने, ये बहुत मुश्किल नहीं है. वी जस्ट नीड टू प्रैक्टिस दैम. हम थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्वालिटीज़ आप में भी धीरे धीरे डेवलप हो रही है. और जब आप ये क्वालिटीज़ अपने आप में देखेंगे कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ आ रही हैं, तो यू विल सी दैट पीपल आर फॉलोइंग यू मोर. आपको तब अपने आप रियलाइज़ होगा कि जो आपके साथ वाले लोग हैं, जो आपके कोलीग्स हैं, आपके जूनियर्स हैं, जो आपका पीयर ग्रुप है, इवन मे बी सीनियर्स, वो भी आपको दे विल स्टार्ट लाइकिंग यू. वो उनका जो आपके प्रति जो उनका पर्सपेक्टिव है, जो उनका वे ऑफ थिंकिंग है, वो पॉजिटिव और ज़्यादा हो जाएगा. अगर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो आप देखेंगे उसमें और they are more attracted towards you, towards your work, towards your qualities, towards your efforts. जब वो उनको दिखेगा कि this person is on the way of improvement, है ना. everyone can notice these things. हम भी जब किसी बंदे में कोई अच्छा चेंज होता है तो हम भी नोटिस करते हैं. तो सेम गोज़ विद अस ऑल्सो. अगर हम में भी ये क्वालिटीज़ हम डेवलप कर रहे हैं तो डेफिनेटली अदर पीपल हु आर विद अस, हु आर वर्किंग विद अस, हु आर with us all the time, maybe in family, in the organization, with your clients, anyone who are in frequently touch with you, so they can realize all these changes, and you will see that you are now on the way of becoming a good leader, and the followers will automatically come to you and they'll start following you. So I wish you to become a good leader very soon by just possessing these qualities. So happy learning and be a good leader soon. Thank you so much for watching this video. If you like this, please share, subscribe and hit the like button. Thank you once again. Bye. Good day. Take care.